गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो अपना टॉपिक है, yesterday we did EMF, potential difference, internal resistance of the cell. Internal resistance of the cell, the combination was this one was the relation between EMF and potential difference, and R the formula C E by V minus 1 into R. By this formula we are able to find the value of internal resistance. So today we are going to discuss about combination of रले सेल को कंबाइन करना है मैक्सिमम करंट लार्ज करंट ऑब्टेन करने वास्ते या तो सेल्स सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ सेल्स पैरेलल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵੀ फर्दर दो केसेस है वो भी डिस्कस करते हैं। पहला ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ सेल्स इन cells in series ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਸੈੱਲ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੇ ਸੈੱਲ ਮੰਨ ਲਓ 1.5 ਵੋਲਟ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ EMF ਸੇਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈੱਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਸੈੱਲ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ we have first, second, third and so on. Obviously EMF of each cell will remain same because we have identical cells. इसको नाम दे cell है इंटरनल रेजिस्टेंस सभी लगानी जरूरी है। कितने सेल ऐड किए गए जिन्हें मर्जी कर सकते हैं, बट हियर वी आर टेकिंग n सेल n सेल सीरीज में जोड़ के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੂ ਦਾ ਹੋਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਲ। ਆ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ਆ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। सीरीज ਦੇ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ EMF ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਟੋਟਲ EMF n ਸੈਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਲ ਦੀ EMF E plus E ਕਿੰਨਾ n टाइम n ਸੈਲ ਹੈਗੇ ਹੈ n टाइम ਤਾਂ ਟੋਟਲ EMF ਜੋ ਵੀ ਹੈ EMF वाली NE effective internal resistance, because we have two kinds of resistance now. One internal resistance of the cell and one is external resistance in the series. Effective internal resistance, as we know, the formula of resistance in series R1
plus R2 plus R3 and so on. Here we have internal resistance, effective internal, that is R n time. तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस भी की होगी एन आर. टोटल नेट रेजिस्टेंस राजे सीरीज के नाल एक्सटर्नल भी तो जुड़ी हुई है वन, तो दैट वुड बी एन आर. तो इंटरनल के नाल एक्सटर्नल भी ऐड करती बाय द ओम्स लॉ. करंट की है टोटल ईएमएफ ओवर टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस. ये बन गया एन ई करंट का फार्मूला बन गया I is to N E over N R plus. But we have to find large current. That is why we are going to combine this cell. To get large current, we have two options. One is internal resistance may be greater. One is external resistance may be greater than the internal one. So here we are going to discuss two cases. One is NR mean internal resistance of the cell is greater than the external one. External ਆਪਾਂ ऐड ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰੰਟ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਰਾਜੇ in case internal is greater than the external one, so at that time R will be neglected. अगर R है वो neglect हो जाएगी तो करंट का फार्मूला क्या हो जाएगा. अरे ये तो neglect होगी ये R रहेगी. ये आ गया N is E by R. E का मतलब एक सेल ਦੀ EMF, R का मतलब रेजिस्टेंस, यानी कि ये बन गया N टाइम ड्यू टू सिंगल सेल. N टाइम करंट ड्यू टू सिंगल सेल. अगर सिंगल सेल का ही करंट लेना है तो N टाइम और N टाइम करंट ड्यू टू सिंगल सेल तो करंट कितना होएगा N टाइम. N मतलब जिन्ने सेल ਆਪਾਂ सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, which is good, which is good. So that means so by NR स्टूडेंट थोड़ी सी मिस्टेक है. If NR greater than R will be neglected. So where I am taking R by mistake. So here would be NR. Here would be
मिलेगा करंट एन ई बाई एन आर कैंसिल हो गया। दिस इज गुड। द करंट ड्यू टू सिंगल सेल ईएमएफ ओवर इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब करंट ड्यू टू सिंगल, मतलब एक सेल का करंट मिलेगा अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी सर्किट के विच। इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा का मतलब दैट सेल इज पुअर, सेल इज पुअर का करंट होएगा E बाई आर। सिमिलरली सेकंड केस इज एक्सटर्नल इज ग्रेटर दैन द इंटरनल वन। हूँ ठीक है, एक्सटर्नल ज़्यादा ले रहे हैं आ वाली, मतलब ग्रेटर दैन एन आर, फिर करंट कितना होगा, जो एन आर है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी निगलेक्टेड। तो निगलेक्ट कर देंगे उन्होंने, हूँ करंट कितना आ गया, जो मैं बाई डिग्री पहला राइट करता सी एन ई बाई आर, करंट कितना आ गया, that is n time current due to single। ठीक है, मतलब अगर n सेल जोड़ रहे हैं तो जो करंट है वो मैक्सिमम होना चाहिए, लास्ट होना चाहिए। तो लास्ट पे एक लाइन लिखनी है, here we are combining n identical cell in series to get मैक्सिमम करंट। जो सेल्स है सीरीज में जोड़ रहे हैं टू गेट मैक्सिमम करंट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आ जाता है, ये आएगा तो केसिस नाल आएगा क्वेश्चन भी अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਜ ਕਰੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੈਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। जो इंटरनल ज़्यादा हो गया तो फिर करंट कितना मिलेगा, सिंगल सेल। तो दैट इज वाई एक्सटर्नल मस्ट बी ग्रेटर देन द इंटरनल वन इफ वी आर कंबाइनिंग सेल्स इन सीरीज। नेक्स्ट है आइडेंटिकल सेल ही है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इको नाम दे सेल है ਜਿਹੜੇ डिफरेंट ਉਹ भी करांगे, बट फिलहाल आइडेंटिकल सेल तीन सेल दिखा रहे हैं इत्थे। पहला आप सीरीज के विच लए सी n सेल्स, इत्थे कोई कन्फ्यूजन ना होवे, हाँ n सेल्स लए वो सीरीज के विच सी, फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल सो ऑन, इत्थे पैरेलल है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन, m सेल आप सीरीज
जी हमेशा ही गल हुई है अपनी भी सीरीज़ दे विच जो करंट है सेम पोटेंशियल डिफरेंट, पैरेलल दे विच पोटेंशियल सेम करंट डिफर, करंट अलग है फर्स्ट सेल सेकंड थर्ड बट पोटेंशियल इज सेम। पोटेंशियल क्या आप ले रहे हैं EMF और M सेल्स है एनी इंटरनल रेजिस्टेंस R, दूजे दी भी R, तीजे दी भी R एंड सो ऑन। टोटल EMF पहले दसे जो टोटल EMF होएगी पैरेलल दे विच इक्को रहंदी है सेम E इफेक्टिव इंटरनल effective internal resistance, because we know the formula. If we are going to combine resistance in parallel, the formula is 1 by R1 plus 1 by R2. That means 1 by R, 1 by R, 1 by इतना M टाइम, तो ये बन गया M by R, M multiply by 1 by R, but अपन R effective चाहिए लो इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी R by M, EMF नेट E, बट सारे कॉम्बिनेशन के नाल आ सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सटर्नल भी जुड़ी हुई है where we are going to use the current of whole the combination, that is total resistance that is R effective plus जुड़ी R सीधी R effective plus R, तो ये बन गई R by M plus R, ये बन जाएगी आपकी सही बन गई R plus M R by M. This is your resistance and this is EMF. Same ऐसी बिल्कुल वैसी नेट करंट, टोटल करंट, टोटल EMF by total resistance. E R करंट की रेजिस्टेंस की जगह पे R plus M R by करंट कितना आ गया ME over R plus, this is the current we have ME over R plus M. E की है EMF, R की है इंटरनल रेजिस्टेंस, M की है जिन्हें सेल अपा पैरेलल कंबाइन की है नंबर ऑफ पर करंट लाग चाहिए तो देखना पड़ेगा इंटरनल ज़्यादा कि एक्सटर्नल ज़्यादा। केस 1 तो पहला सीरीज क्लास सेम इफ पहला सीरीज सी भी एक्सटर्नल ज़्यादा होएगा फिर अपन लार्ज करंट मिलेगा। हम पैरेलल के लिए अपन देख रहे हैं एक्सटर्नल इंटरनल नालों ज़्यादा है करंट कितना होगा ये छोटी आर नेगलेक्ट होगी
स्मॉल आर हो गई निगलेक्ट, करंट आ गया एम, ये खत्म, एम ई बाई एम, करंट कितना आ गया ई, करंट आ गया जे आई इज टू ई बाई आर, एक ईएमएफ एक रेजिस्टेंस, मतलब करंट ड्यू टू, जबकि सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लार्ज होनी चाहिए सी, ਆਪਾਂ लार्ज करंट ले रहे सी, पर ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ देख रहे हैं कि पैरेलल ਦੇ ਵਿੱਚ इस तरह नहीं है। सेकंड केस अगर ਆਪਾਂ डिस्कस करिए, अगर इंटरनल ज़्यादा है तो क्या बनेगा, आर निगलेक्ट हो जाएगा, एम आर खत्म, करंट कितना आ गया एम टाइम ड्यू टू एम टाइम, जो कि चाहिए सैल नूं कंबाइन कर ही तां रहे हैं ताकि वध करंट मिले, तो देख रहे हैं पैरेलल आप कंक्लूड कर देने सीरीज कॉम्बीनेशन के विच जे करंट वध चाहिए तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर दैन द इंटरनल, बट इन पैरेलल कॉम्बीनेशन इफ वी हैव टू गेट लार्ज करंट दैन इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर दैन द एक्सटर्नल। These were the combination of cells, identical cell, जो different cells है वो अपन नेक्स्ट टाइम करांगे। तो ये लास्ट टॉपिक है, एक टॉपिक और आई थिंक पेंडिंग है, तो दिस इज वेरी इजी चैप्टर वन से, तो एज रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है, जो होमवर्क है मैं तो भेजना है, तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। बुक जो रीड करना है, बुक रीड करनी है सारी, तो बहुत क्लियर हो जाएगा। Thank you very much.